If you're a teenager, drop everything right now because I'm making this video just for you. I just got out of the shower and I had posted this story quite a long time ago. It said that, can I be 14 again? Because right now I know what exactly to do. And a lot of people did reply to that story because a lot of people who are following me are in the age range from 13 to like their early 20s. And I'm 24, okay? I am 10 years older than what the story said. And trust me, I was very, I wouldn't say bad, but I was a big loser as a teenager. And I don't throw this word around casually because I think I'm a diva. But if I'm calling myself a loser, you should really believe me. I am going to attach photos for your proof. But first, toner. I feel so intensely about this topic that I had to rush out of my shower. I do not have the time to put on makeup or like do my hair or anything because I'm so ambitious about this topic. Okay, so you have to hear me out. When I was 14, I had specs, I had braces, I had a unibrow. Of course, मुझे तो सभी की होती है, पर मैं बहुत अगली थी. चलो अगली तो ठीक है, you can blame it on your parents and be like हाँ ठीक है मेरी कोई गलती नहीं है, but मेरे तो parents भी अगली नहीं थे. I was still ugly. And on top of that, my behavior extremely, like, oh my god, my behavior, I wouldn't say I was a bad human being. I was, yes, pick me for sure. लेकिन जिस तरह की नीच गिरी हुई इंसान थी मैं, मेरा जो माइंडसेट था बहुत ही डेस्परेट था और लाइफ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी नहीं मेरे को, बात बात पे गैस लाइट हो जाती थी. इट वाज जस्ट अ वेरी सैड पीरियड इन माय लाइफ एंड व्हाइल सेइंग दैट आई एम यूजिंग द टीटी मिल्क एम्प्यूल मॉइस्चराइजर. बहुत ही मतलब क्राइसिस चलती रहती थी तब मेरी लाइफ में, इन द सेंस नोबडी लाइक्ड मी. आई हैड फ्रेंड्स लेकिन कोई मेरी इज्जत नहीं करता था, मेरे पेरेंट्स मेरी इज्जत नहीं करते थे, मेरा वैन वाला मेरी इज्जत नहीं करता था. इट वाज जस्ट बैड. बट इफ आई कुड बी 14 अगेन, here is what I would do differently. And if you are someone who's in the age group from 13 to 20, this will definitely apply for you. Okay, first of all, let me just tell you, when we're all teenagers, we are all ugly. Like, I have not seen a pretty teenager, and the pretty teenagers that you see on Netflix, wow, spoiler alert, they're 25 years old. So there is literally no pretty teenager that exists. And if you think you're pretty, congrats, you have self confidence. Because your teen era is a phase where like God literally tells you you can't be beautiful right now. This is, God is literally making you ugly for the plot, because when you are in your 20s tab tum automatically hot lagoge and then everyone will be like wow, glow up. But no, this is God's way of planning it. You're cute when you're a child, you are ugly when you're a teen, and you're fucking hot when you're in your early 20s or like mid 20s or 30s or whatever. But the point is, you should know that it is never about your looks. As a teenager, literally it is never about your looks. I have seen the most ugliest boys be the most popular kids in school. And you know what? It does not take looks. It takes a lot of confidence and it takes a lot of risk. In a nutshell, the number one thing I wish I had in me, or I wish I did more, was being confident. मेरी लाइफ की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती अगर मैं कॉन्फिडेंट होती. क्या मैं कभी बुली होती? नहीं. क्या कोई मेरी यूनिब्रो को बोल के बोलता ओ देख तेरी आईब्रोज के बीच में कौवा उड़ रहा है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. I don't think so. I had it in me to give it back to my bullies. I still don't give it back to people, but I'm still better than what I used to be. And I know that being confident is not easy. मुझे भी बहुत बड़ा glow up लगा to become this confident, because I was like, okay, whatever, अब तो मैं pretty दिखती हूँ, अब तो मैं confident हो सकती हूँ. लेकिन what you can do to be confident is बी वेरी स्मार्ट. आई विल टेल यू अ हैक. ऑल्दो तब मेरी मतलब तब मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड थी और मैं बहुत ही ज्यादा डिल्यूजनल थी, लेकिन दिस हैक रियली वर्क फॉर मी. तो जब मेरे पापा की पोस्टिंग दिल्ली से जयपुर आई थी, आई वॉज गोइंग फ्रॉम टेंथ टू 11th क्लास, ठीक है. और तब मैं जयपुर में गई थी और तब मैं मतलब मैं अगली दिखती थी. आई हैव बीन अगली ऑल माई लाइफ अंटिल 23. लास्ट ईयर से मेरा ग्लो अप हुआ है, उसके पहले एमी टाइप की दिखती थी मैं. तो जब मैं दिल्ली से जयपुर गई, आई वाज लाइक मैं तो दिल्ली से आई हूँ, एक्सक्यूज मी, मैं दिल्ली से हूँ, एक्सक्यूज. I would like to say that there is no better city than Jaipur. I love Jaipur. I've spent almost 6 years of my life in Jaipur and nothing compares to Jaipur. लेकिन मैंने अंदर से ही मैंने ऐसे सोच के रखा था मैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी गर्ल हूँ, मैं तो लाइक मैं तो बिग सिटी से आई हूँ. माय गॉड. And you know what? Surprisingly, that worked in my favor. मैं इतनी over confident थी. Someone who's under confident, not even confident. I was under confident. And the fact that मैं इतनी delusional थी कि मैं तो बहुत cool हूँ, मैं तो दिल्ली से आई हूँ. This made me extremely confident in life. And I participated in debates. I participated in poetry competitions, essay writing competitions, writing competition. Every competition I won. I used to win everything. Not because मेरी class में सब dumb थे, because मैं of course science में थी. तो science में
ऑफ कोर्स लाइक मेरे इतने अच्छे कोई मार्क्स आते नहीं थे, मैं फिजिक्स में जस्ट पास होते होते बची हूँ, बट द पॉइंट इज कि मैं अपने दिमाग में इतनी डिल्यूजनल थी कि भाई मैं तो बड़ी कूल हूँ, मैं तो एकदम पिंटरेस्ट गर्ल हूँ, मैं तो इट गर्ल हूँ। मैं इट गर्ल भी नहीं थी भाई, मैं दिखती नहीं थी लोगों को, मैं 4 फीट 8 इंच थी मैं। बट द पॉइंट इज कि मैं इतनी डिल्यूजनल थी। डिल्यूजन इज योर क्योर टू एवरीथिंग। पॉइंट नंबर, तुम्हारी लाइफ से जितने भी घटिया लोग हैं, इंक्लूडिंग योर क्रशेस, योर बॉयफ्रेंड्स, योर टीचर्स, टीचर्स को तो खैर लाइफ से निकाल नहीं सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर फ्रेंड्स। मेरी लाइफ में बहुत घटिया दोस्त मिले मेरे को, जिन्होंने मेरे को बहुत पुट डाउन करा, दे मेड फन ऑफ मी, दे मेड फन ऑफ मी, मतलब दे इंसल्टेड मी व्हाइल मेकिंग फन ऑफ मी, मेरी इनसिक्योरिटीज को अटैक करा। एंड चलो ये बात है 2014-15 की, जब मैं अवॉइड कर सकती थी कि ठीक है भाई तुम इतने वोक नहीं हो व्हाटएवर। आजकल इंटरनेट पे ऐसा कोई नहीं है जो वोक नहीं है, सबको पता है थेरेपी क्या होती है, सबको पता है इनसिक्योरिटी क्या होता है, और इस एज ग्रुप में डेफिनेटली लोगों को पता है व्हाट इज गैस लाइटिंग, व्हाट इज ब्रेन वॉशिंग। सो इफ समवन इज स्टूपिड इनफ टू सॉर्ट ऑफ make fun of you, insult you, trust me, they have been on the internet, they know what is right, they know what is wrong। आजकल कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं है। तो अब तो मैं किसी को ऐसा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी भी नहीं, सब वो है अभी, सबको पता है कि जो तुम कर रहे हो इट इज रॉन्ग। एंड इफ योर फ्रेंड इज putting you down, is bullying you, is acting very pick me, cut that person out। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा फियर था that I will be alone in school, in college, and this is one thing that I would definitely like to work backwards on। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपने दोस्तों से कट ऑफ कर लूंगी इन स्कूल एंड कॉलेज, मेरे पास कोई नहीं रहेगा और मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी व्हाटएवर, एंड आई विल बी वेरी सैड। तो मैंने नहीं करा, मैं टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स कैरी करती रही। मुंबई आके आई कट देम आउट, इवन दो दिस सिटी मेड मी लोनलियर, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, मैंने अपने फ्रेंड्स को कट ऑफ कर दिया। बट आई एम नॉट इवन किडिंग यू, अ मंथ आफ्टर आई कट माई फ्रेंड्स ऑफ, आई फाउंड माई बॉयफ्रेंड, आई फाउंड द बेस्ट पीपल इन माई लाइफ। और धीरे धीरे करके दीज फ्रेंडशिप्स जस्ट कीप ऑन एडिंग टू योर लाइफ। So I'm saying it is easier to cut off bad friendships right now than it will be in your adulthood. So you should know who is bad for you and who is good for you. Number 3, participate in sports। मैं एक नंबर की लूजर, गधी, बहुत ही घटिया इंसान हुआ करती थी। मैंने कभी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करा है। जब भी हमारा पीटी वाला पीरियड होता था ना, गेम्स पीरियड में, हमेशा अपने सर को बोलती थी, सर मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकती। और मैं साइड में बेंच पे जाके बैठती थी व्हाइल एवरीवन एल्स वुड बी हैविंग फन, बिकॉज आई वाज सो इनसिक्योर ऑफ माय बॉडी, ऑफ मी रनिंग। मेरे को लगता था लोग मेरा मजाक बढ़ाएंगे, यार अभी मैं बतख की तरह भागती हूँ। आई किड यू नॉट, इफ यू सी मी रनिंग आई एम जस्ट लाइक I run like this, but I still run. I know that I have great legs. I have calves. I have calves by the way now. I have a great muscle. कल मैंने बैक मारा है, बट वट एवर, आई नो दैट इवन दो मेरी बॉडी अभी उतनी हेल्दी नहीं है जितनी 14 साल की उम्र में थी, मैं अभी इतनी एक्टिव नहीं हूँ जितनी मैं तब थी। अभी मैं एक रामेन ठूस कर आई हूँ, बट आई कांट डेमोन्स्ट्रेट दैट। पर आई स्टिल रन मोर नाउ। आई प्ले पिकल बॉल, आई प्ले बैडमिंटन। मैं हैंगिंग बार पे अब लटकती हूँ, बिकॉज ऑल दो मेरी हाइट नहीं बढ़ सकती, तब मेरे पास चांस था और मैंने ये सब करा नहीं। तो प्लीज play sports, take that risk। I know you might be insecure about the way you look, about the way you run, about the way you do things। Trust me, when you will be 24-25 you will regret कि भाई तुमने बचपन में क्यों नहीं भागा। मैं फॉरेस्ट गम से आज तक कभी रिलेट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बचपन में भागा ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं what did bunny mean when he said मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, बिकॉज मैं भागना ही नहीं चाहती थी स्कूल में। I was like no, not at all, not at all। तो बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग, भागो, स्पोर्ट्स खेलो, कूदो, मतलब तुम्हें मस्ती करनी है करो। I know it's like you want to be nonchalant and you want to be like very cool like that कि ओहो मैं तो ये सब नहीं करती, but trust me, अभी जब 24 इयर्स की एज में, 42 सी उम्र में जब बैक एक होने लगता है ना, यू मिस ऑल ऑफ दैट। सो डू दैट एंड ट्रस्ट मी, इट जस्ट मेक्स यू मोर एक्टिव, इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट, एंड दैट रियली हेल्प्स यू इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। लाइक आई फील लाइक अगर मैं इन लाइफ, मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा हाई होता, मैं ज्यादा एक्टिव होती, तो I would just, avoid a lot of like health issues or like a lot of issues in my life. So I'm saying just have fun running, playing sports, PT, VT games period. मतलब people used to love them, but I used to be terrified of them. तो मैं कह रही हूँ मतलब ये सब करो, बहुत बहुत सॉलिड चीज होती है लाइफ में। नंबर 3, प्लीज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्लीज किसी के भी प्यार में इतना पागल मत होना कि तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे ग्रेविटी की जिस तरह ड्रॉप कर दो। प्लीज, दिस इज, मेरे नेल्स है भी नहीं, पर प्लीज यार कन्विंस हो जाओ यार, प्लीज। लाइक इफ आई हैव
made one decision that I regret the most. Although I'm the most आशिक person ever, मैं हमेशा believe करती हूँ पहले एक तरफा प्यार की ताकत में कि नहीं तुम्हें सबको जाके कन्वेंस मतलब सबको जाके कन्फेस कर देना चाहिए, oh my god I love you so much, do that, I am all here for it. पर सही इंसान को बोलना प्लीज, गलत इंसान के पीछे मत पड़ जाना. मैंने गलती अपनी लाइफ में एटलीस्ट 999 टाइम्स दोहराई है. अभी मैं थोड़ी फिक्स हो चुकी हूँ. आई हैव फाउंड someone but the point is गलत इंसान के पीछे मत अपना लाइफ वेस्ट करो. तुम्हें लगता होगा कि तुम किसी को डबल टेक्स्ट कर रहे हो, वो तुम्हें अटेंशन देगा, तुम किसी के लिए स्टोरी पे स्पैम कर रहे हो, किसी को अपने प्राइवेट अकाउंट पे ऐड करके उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टोरी डाल रहे हो एक पर्टिकुलर सॉन्ग पे ताकि उसे हिंट मिले, तुम इसे 3-4 बार मीम्स भेज रहे हो, तुम उसके लिए फालतू में वेट कर रहे हो. सिस्टर नो नो नो, नॉट एट ऑल किटन, नो नो. लाइफ में एक चीज होती है, इट इज कॉल्ड बीइंग अ बैड बिच. You're a bad bitch. You need, yeah, yes, when you will be in your 20s, when you will be in your 30s, you will realize कि तुमसे बड़ी baddie है ही नहीं कोई. Then you will look back at your 14-year-old self and you will be like, the fuck did she do for a guy, for this guy. और मैं बता रही हूँ, मैंने ना when I was in 10th 11th even 9th I used to like this one guy, ठीक है, मतलब not just one guy, many guys. और उन लड़कों में से किसी का भी ग्लो अप नहीं हुआ, सब 14 साल के लड़के दिखते हैं. लेकिन मैं, आई एम नॉट सेइंग मैं आंटी दिखती हूँ, पर मैं सृष्टि बिफोर सृष्टि नाउ, यू सी मेरा फिर भी ग्लो अप हुआ है. मैं फिर भी ब्यूटीफुल दिखती हूँ, लेकिन वो उनका तो मेच्योरिटी लेवल भी आई एम श्योर इतना ही होगा. अब वी आर नॉट इन टच एनीमोर एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट. बट मेरा बिहेवियर चेंज हुआ, मैं डीवा बनी, मैं डिवाइन फेमिनिन बन गई. वो चेंज हुए? एब्सोल्युटली नॉट. और अभी मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि मैं इन जैसे घटिया लोगों पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करा मैंने. बहुत गर्मी लग रही है, बढ़ते बढ़ते मेरे एम्बिशन बढ़ गए. 1 सेकेंड. नंबर 5 या नंबर 6 या जो भी नंबर है ये, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स दैट यू वांट टू डू. अगर मैंने 14 साल की उम्र में यूट्यूब बनाना चालू कर दिया होता, एंड आई एम ब्लडी गुड एट इट, ओके, अगर मैंने 14 साल की बाली उम्र में अपने आप को क्रिएटर बोलना चालू कर दिया होता, तो आज शायद मैं सेलेना गोमेज के लेवल पर होती. आज शायद मैं भी टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में उसी के साथ खड़ी होती. पर क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट. आई डिलेड माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी बिकॉज ऑफ दिस वन गाय हु आई लाइक्ड, जो बहुत ही स्टोनर कोडेड नॉन शलॉन्ट बनता था. आई वाज लाइक, अरे इसको तो ऐसी शलॉन्ट लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं होंगी, ओहो इसको इम्प्रेस करना है तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसा मिस्टीरियस लोकी बनना पड़ेगा. दैट गाय डिड नॉट गिव टू फक्स अबाउट मी. वेयर इज ही नाउ? आई हैव नो आइडिया. आई हैव अनफॉलोड हिम, ही हैज अनफॉलोड मी, आई एम श्योर. एंड द थिंग इज, मुझे इतना रिग्रेट होता है कि मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी पैंडेमिक के 2 साल बाद चालू करा, जबकि लॉट ऑफ पीपल हैड स्टार्टेड इट अर्लियर, बिकॉज आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड ऑफ दिस वन गाय कि ओहो ही विल स्टॉप लाइकिंग मी. ही नेवर लाइक्ड मी, he still doesn't like me. मैं किससे डर रही थी? I have no idea. So whatever that you want to do in your life, whether it is making content, doing YouTube, I don't know, like playing games, I guess, मतलब मेरे को और कुछ पता नहीं है. If you want to dance, if you want to sing, and if you're delaying that because of लोग क्या कहेंगे, including your friends, your crushes, your boyfriends, whatever, no, absolutely not. मैंने I think I've already posted about it, but 12th class में मैंने एक beauty pageant में participate करा था. I was dating this guy back then, and he told me कि मैं तो attend नहीं करूँगा, हो you will embarrass me so much, all that shit. मैंने तब भी उसमें participate करा. 3 लड़कियों ने participate करा था उस pageant में, मैं तीसरी आई थी. बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी मेरी. कुछ खास लाइफ में मैंने अचीव नहीं करा, पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि ब्रो आई कुड स्टिल डू दिस इवन दो दिस गाय ट्राइड टू पुट मी डाउन. दैट ramp walk gave me the kind of confidence I needed as a 17-year-old in my life. So I'm just saying, अपना ambition और तुम्हारा जो dream है to do something in life, even if it is making content, honestly, do it, please. I'm telling you, do it. Do not delay. हमारे पास life का ना जो time span है बहुत छोटा है. अगर तुम इतने से spam क्यों बोल रही हूँ मैं, अगर तुम इतने से span में अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाओगे ना, भूल जाओ. तुम अपनी लाइफ किसी और की मुट्ठी में रख के अगर चल रहे हो ना, please, this page is not for you. This page is only for the people who realized they were losers, but now they have turned into bad bitches. And final point, last point, this goes without saying, क्योंकि मैं अभी थक चुकी हूँ. If you want me to make a part 2 of this, let me know. But I think जब मैं 14 years की थी, तब भी काफी लोगों ने ये सब कर लिया था. And I'm sure अभी काफी ज्यादा ही, मतलब अभी तो फोमो तो ज्यादा ही होगा अगर तब ज्यादा था. But please wait for your first kiss. Do not rush into your first kiss. Your first kiss can not be a very random senior from your school.
who you don't like at all, and you just have to kiss him because of peer pressure and because you've never kissed anyone. Please, if you are a teenager, make sure your first kiss is beautiful and memorable, क्योंकि first kiss लोगों की life का बहुत ही important moment होता है, like that feeling of, you know, just like kissing someone for the first time and you feel very like bubbly on your lips, and like अभी तो at this point I can admit, yeah, okay, like, you know what, yeah, I did kiss someone when I was a teenager, that was my first kiss. But for the longest time, I couldn't admit it because I was just so. I'm still ashamed of my first kiss. I really feel like I should have saved it for the person I actually liked. और मैं ये peer pressure और FOMO में नहीं करती. But please save your first kiss. I know I might sound like an old grandma. I might sound very like, oh, like conventional or whatever. These are just my thoughts because I know that I should have saved my first kiss for someone better. But when you will be in your 20s, you will actually look back at it and you will be like, you know what, I feel like I should have waited for someone special. And I mean, this goes for other things in your life also, but please do it with someone that you actually like. और peer pressure और FOMO में आके ऐसी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर तुम्हें peer pressure और FOMO में कुछ करना है तो पढ़ाई करो, क्योंकि also very important thing, your grades are not going to matter so much in life. तुम्हारे कॉलेज के ग्रेड्स मे बी टू सम एक्सटेंट मैटर करेंगे व्हेन यू आर गेटिंग अ जॉब, बट आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने बहुत ही रैंडम चीज में डिग्री करी है और अभी वो बहुत ही रैंडम चीजें कर रहे हैं. तो लाइफ में कुछ इतना सीरियसली लो मत. मतलब ठीक है भाई, मैं बहुत ही स्टूपिड हुआ करती थी, बहुत सारी ट्रिगर वार्निंग लगानी पड़ेंगी अगर मैंने अपने पास्ट के बारे में बता दिया, बिकॉज आई डन सम रियली डम शिट व्हिच विल गिव अ लॉट ऑफ पीपल कि क्यों करा इसने ऐसा है व्हाटएवर. तो मेरे को अभी इतनी ट्रिगर वार्निंग नहीं लगानी सबके लिए. लेकिन द पॉइंट इज, डू नॉट टेक लाइफ सो सीरियसली. तुम्हारे मार्क्स ही है, तुम्हारे ग्रेड्स ही हैं. एंड while I'm saying that, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ो, फेल होते रहो, whatever. One of the things that I'm really proud of in my life is मैंने बहुत जल्दी लाइफ में हसल करना चालू कर दिया था. When I was 18, I just went to the college. I took up an internship that paid me 1,000 rupees a month because I wanted to be independent so badly. मेरे को इतना काम करना पड़ता था और मेरे को महीने के सिर्फ 1,000 rupees मिलते थे, but I still took it. I was like, you know what, let me just do it because at least मैं कैंटीन में किसी को बिना बताए तो खाना खा सकती हूँ. And I think that's the best decision of my life ever कि मैं मेरे अंदर बहुत इंडिपेंडेंट होने का बहुत ज्यादा एम्बिशन था, स्पेशली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का. बट टू गेट देयर यू ऑल्सो नीड टू वर्क हार्ड. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई बिल्कुल ही मत पढ़ो, फेल हो जाओ. नो, नॉट एट ऑल. यू नीड टू बी एन एजुकेटेड बिच. यू नीड टू बी इंटेलिजेंट. यू नीड टू बी एजुकेटेड. यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल मनी प्रॉपरली. यू नीड टू नो इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. और ये सब बड़े टॉपिक्स तुम्हारी लाइफ में आगे चल के आएंगे, आई एम श्योर. But don't take your grades so seriously, but take education seriously. There's a very big difference between the two of those. अब मैं कोई सेक्सी प्रोफेसर तो हूँ नहीं जो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाऊंगी. अगर मेरे को इस बात के पैसे मिल रहे होते तो मैं ऑफकोर्स बताती, but since I'm not getting paid to talk about education on my channel, I will not do that. But yeah, that was mostly it. I hope you guys have enjoyed our little one-on-one session and I hope you can take something away from it. Okay, bye.